فواد تکرلی کی کہانی بادل، انگریزی سے ترجمہ اجمل کمال۔ میں نے فوراً گھنٹی نہیں بجائی، بلکہ پہلے عام سے انداز میں دروازے کو خود اپنی چابی سے کھولنے کی کوشش کی۔ کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہ کیوں یہ مجھے ناممکن لگا۔ میں تھوڑی دیر سوچتا رہا۔ مجھے کچھ پریشانی سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے میرے دماغ پر ایک گہرا بادل چھا گیا ہو۔ یقیناً یہ ہمارے اپنے فلیٹ کا دروازہ تھا، جو شہر کے دوسرے مغربی حصے کے 5ویں سیکٹر میں واقع تھا، اور ہمیشہ کی طرح میں نے 6 سیڑھیاں چڑھی تھیں، اور ایسا کرتے ہوئے اپنے تھکے ہوئے جسم کو سہارا دینے کے لیے لوہے کے جنگلے کو تھامے رکھا تھا۔ پھر اس کے علاوہ دیوار پر بنی وہ ٹیڑھی میڑھی تصویریں اور کیچڑ اور دوسری غلاظتوں کے دھبے اپنی معمول کی ترتیب میں میری نظروں کے سامنے سے گزرے تھے، جو عمارت کی متعفن فضا کے ساتھ مجھے تسکین کا ایک سیاہ احساس دیتے تھے کہ میں اپنے گھر میں ہوں۔ اس لیے کوئی وجہ نہ تھی کہ دروازہ میری چابی سے نہ کھلے، کیونکہ یہ میرے ہی گھر کا دروازہ تھا، جہاں میں اور میرے گھر والے برسوں سے اکتاہٹ یا بے اطمینانی محسوس کیے بغیر رہتے آئے تھے۔ اس کے باوجود، اور چونکہ ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی فطری بات موجود ہوتی ہے جو اسے اس کی مخصوص حدوں میں ممکن بناتی ہے، اور چونکہ میرے لیے اس خیال کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہ تھا، اس لیے مجھے یہ بھی تسلیم کرنا ہی تھا کہ اب مجھے اندر داخل ہونے کا کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ اس لیے میں نے گھنٹی کا بٹن دبایا۔ بلا شبہ میں صبح سے شام تک کے متواتر کام کے بعد تھک گیا تھا اور گرم پانی کے ٹب میں لیٹ کر اپنی تھکن دور کرنا چاہتا تھا، کیونکہ آدمی کا جسم زندگی کی مسلسل ایذا دہی کو بہت عرصے تک نہیں سہ سکتا۔ گھنٹی کے دوسری بار بجنے کے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور میرا سامنا مس رباب سے ہوا، جو اپنے گھر میں پہننے کے آراستہ نیلے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اس کے چہرے پر تعجب اور ناگواری کے تاثرات تھے، اور چند لمحوں تک ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں خالی انداز سے تکتے رہے۔ شام بخیر مس رباب، آپ یہاں؟ ہاتھ کی ایک ماہرانہ حرکت سے اس نے اپنے بالائی لباس کو سینے پر درست کیا، جیسے اس کے خیال میں وہ بدن کو چھپانے کے بجائے دکھانے کا کام کر رہا ہو۔ شام بخیر، اہلاً و سہلاً۔ میں نے آگے بڑھ کر فلیٹ میں داخل ہونا چاہا، لیکن رباب نے میرا راستہ روک دیا اور چلائی، عبد الکریم صاحب، آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کسی کے گھر آنے کا کون سا وقت ہے؟ اور اس وقت میں گھر میں اکیلی ہوں۔ میں جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا اور اپنے سر میں چھائے بادل کو اور زیادہ گھنا ہوتا محسوس کرنے لگا۔ گزشتہ رات سے وہ مجھ پر کسی وحشی درندے کی طرح منڈلاتا رہا تھا۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ میری آواز کپ کپا رہی تھی۔ خاتون، میں بہت سخت تھکا ہوا ہوں اور اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ کر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ذرا بتائیے کہ آپ مجھ سے یہ سب سوالات کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کے گھر والے؟ کیسے گھر والے؟ یہ آپ کا گھر نہیں ہے۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ لوگ 2 سال پہلے دوسرے فلیٹ میں نہیں چلے گئے تھے؟ کیسی عجیب بات ہے۔ خدا کے لیے یہ حیرت کا اظہار کرنے کا وقت نہیں ہے۔ خدا حافظ۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور مجھے شکوک، اندیشوں اور دوسری الجھنوں کے بھنور میں چکراتا چھوڑ گئی۔ مجھے خیال آیا کہ رباب سے، جو واقعی اس فلیٹ کی مالک تھی جسے ہم نے کرائے پر لے رکھا تھا، پوچھوں کہ اس کے اس طرز عمل کا سبب کیا ہے۔ کیا واقعی ایسی باتیں پیش آ گئی ہیں جن سے میں کسی عجیب طور سے لا علم ہوں؟ لیکن پھر مجھے اس کی تنک مزاجی سے خوف محسوس ہوا، کیونکہ وہ 30 برس سے زیادہ عرصے سے غیر شادی شدہ زندگی بسر کر رہی تھی اور ہمیشہ کسی نہ کسی وجہ سے جھنجھلاہٹ اور تناؤ میں مبتلا رہتی تھی۔ شاید اس نے مجھے یہاں سے، جو میرا گھر تھا، بے رحمی کے ساتھ واپس لوٹا دینے کے لیے یہ عجیب و غریب بہانہ ایجاد کیا تھا۔ تاہم ایک خاتون کے ساتھ اس کے اپنے فلیٹ میں، جبکہ اس نے شب خوابی کا نیلا لباس پہن رکھا ہو، گفتگو کرنے کا خیال خاصا مشکل تھا، جس کے مضمرات کا ٹھیک طرح سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ اس لیے میں فوراً واپس مڑا اور احاطے کی باہر کھلنے والی بڑی کھڑکی کی طرف چلنے لگا۔ میں نے نیچے نظر ڈال کر دور افق کے منظر کو دیکھا۔ سورج کا صرف ذرا سا حصہ گھنے سیاہ بادل میں پھنسی ہوئی سرخ روشنی کی باریک سی لو کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ آسمان پر بارش کی خبر دینے والے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور اس سے صورتحال فوری طور پر نہایت پیچیدہ ہو جاتی تھی۔
उस तंग अहाते में बंद दरवाजे के सामने, जिसके खुलने की कोई उम्मीद न थी, इंतज़ार करने के ख्याल से न सिर्फ मेरे वजूद की गहराइयों में बल्कि इर्द गिर्द के माहौल में भी नाउम्मीदी फैलने लगी थी। मुझे बेयकीनी ने घेर लिया और माजी के वाक़यात ने मेरी नज़रों के सामने छाकर मुस्तकबिल का वाज़ह मंजर धुंधला दिया। मैं फिर मुड़ा और मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं फौरी तौर पर यहाँ से न चल दिया तो मेरी थकन ख़तरनाक सतह पर पहुँच जाएगी। मिस रुबाब एक ऐसे मामले के बारे में पूरी तरह पुरयकीन मालूम होती थी जो बहुत से शुकूक व शुबहात से घिरा हुआ था। तब मैंने खुद को अपने अंदर की आवाज़ की तामील करने पर छोड़ दिया जो मुझे उस जैसे लोगों से आर्जी तौर पर दूर चले जाने को कह रही थी, और मैं आहिस्ता आहिस्ता लेकिन पुरज़्म कदमों से सीढ़ियाँ उतरने लगा। मैं बाहर गली में निकल आया जहाँ जगह जगह अंधेरा छाने लगा था। ये गली मुझे आशना महसूस होनी चाहिए थी, मुझे उससे अच्छी तरह वाकिफ़ होना चाहिए था, लेकिन मैंने महसूस किया कि ऐसा नहीं है। मुझे लगा कि मैंने यहाँ पहली बार कदम रखा है। यह एक तनफ़ुर अंगेज़ गली है जो अपने वजूद का कोई तासुर नहीं देती और मुझे उससे नफ़रत है। ये किसी ऐसे शख्स की तरह है जो एक मुश्तबा खामोशी में तुम्हें घूर रहा हो, तुम्हें हवा और रोशनी दोनों से महरूम कर रहा हो और कोई बात करने पर आमादा न हो। मैंने अपने कदम तेज़ कर दिए। रोशनी का मंबा बहुत दूर था और मुझे महसूस होने लगा कि मिस रुबाब की कही हुई बात पूरी तरह सच न थी। मुझे उससे बात करके मामला पूरी तरह साफ करना चाहिए था, चाहे सूरत हाल उसके नीले कपड़ों वगैरह के बायस कितनी ही खिफ़्फ़त अंगेज़ क्यों न हो। मिसाल के तौर पर मुझे उससे मजबूत लहजे में कहना चाहिए था कि वो मेरी बीवी को बुला कर लाए और उससे जाकर कहे कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इस सादा और साफ तर्ज अमल से किसी दुश्वारी की राह ना निकलती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। क्या ये मेरी बेपनाह थकन और जहनी मांदगी के बायस था, या उस गहरे काले बादल की वजह से जो मेरी रूह को घेरता चला जा रहा था और जिसने अचानक मेरी नज़रों के सामने जाने पहचाने बस स्टॉप को, जो इत्तेफाक से बड़े बाजार के करीब वाक़ था, मुजस्सम कर दिया और एक किस्म की राहत के एहसास ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। मैं बिलाशुबा दुरुस्त समत में चल रहा था, वही समत जिस पर मैं अक्सर ठोकरें खाता रहा था। आज की शाम मुझ पर कैसी खुशकिस्मती का साया है, तो गोया मेरा फ़ौरन चला आना बेकार नहीं गया। आज के बाद से मुझे अपना ये ख्याल बदल डालना चाहिए कि काम करके ख़ुद को थकाने से कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि ज़िंदगी की तरफ से कभी कभी उकताहट के साथ ही सही जवाब ज़रूर आता है, और रिजायत उस सब के बावजूद जो पेश आया है पहले की तरह नफ़ा बख्श और बेज़रर साबित होती रहेगी। मैंने दूर से उसे बस स्टॉप के सायबान तले खड़ा देखा। वो तन्हा थी। मैं अपनी निगाहों पर यकीन न कर सका और अपनी जगह खड़ा रह गया। वो अपने उसी पुराने नीले ओवरकोट में मलबूस थी और उसके लंबे सुनहरी बाल किसी झरने की तरह उसके शानों पर गिर रहे थे। उसके छरैरे बदन की तरफ देखते हुए मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। खुदाया, मेरी धड़कन कितनी शदीद हो गई है। फिर मैं उसकी तरफ बढ़ा। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि खुशकिस्मती ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, क्योंकि जूं ही किसी ने मेरी तरफ देखने और मुझसे बात करने से इनकार किया, ठीक उसी वक्त मुझे अपनी बीवी मिल गई। और उस वक्त जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी, कोई और नहीं बल्कि वो खुद, वो ज़िंदगी की, तसलसल की और आने वाले वक्त की अलामत है। मैं उसे अपनी तरफ देखने और उसे मुखातिब करने से भी पहले बढ़कर उसे अपनी बाहों में समेट लेना चाहता था, लेकिन मैंने अपने थके हुए वजूद को रोक लिया, क्योंकि ये बातें मुनासिब जगह पर करने की होती हैं। मैंने उसे मुश्ताक आवाज़ में पुकारा, मनाल, शाम बखैर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरी जानिब मुड़ी। मेरी समझ में न आया किस वजह से मैं उसे वाज़ह तौर पर नहीं देख पाया था। मैं उसके खदो खाल में आने वाली तब्दीली और मोटे शीशों वाले चश्मे को जो उसने पहन रखा था देख कर हैरान रह गया। क्या तुम तसव्वुर कर सकती हो, मैंने अपनी बात जारी रखी, कि मेरी मुलाकात फ्लैट की मालिका मिस रुबाब से हुई। उसने अपने हमेशा के अक्खड़पन के साथ मेरा सामना किया जैसे मुझे जानती ही न हो। उसने मुझसे अंदर तक आने को नहीं कहा। ज़रा सोचो। फिर मैंने मुख्तसरन वो पूरी बात बताई जो कुछ देर पहले मेरे साथ पेश आई थी, मगर मैं हैरान रह गया जब मनाल ने खाली धुंध भरे अंदाज में बड़बड़ा कर कहा, हर तरफ पागल घूम रहे हैं, खुदा हमारी हिफाजत करे। उसने अपना बाजू उठाकर एक टैक्सी को इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने टैक्सी नहीं रोकी। तुमने देखा नहीं? मैंने उससे पूछा। कि उसमें एक शख्स बैठा हुआ था, इसीलिए टैक्सी नहीं रुकी। तुमने देखा नहीं था? उसने मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखा। मैं वहां से हटने का कोई इरादा न रखता था। उस सूने बस स्टॉप पर मैं और वो तन्हा थे।
सुनो मनाल, ये झगड़ने और चीखने चिल्लाने की जगह नहीं है। चलो घर चलकर आराम और सब्र से पूरी बात करते हैं। क्या तुम्हारे ख्याल में ये ठीक नहीं होगा? मैं कल रात से सख्त थका हुआ हूँ। कल रात से, ओ खुदाया, कल की रात मुझे कैसी अच्छी तरह याद है। तुम्हें मेरी बात पूरी तरह समझ में नहीं आई थी। इसके बावजूद कि मैं जो कह रहा था वो बिल्कुल ठीक था। मैंने कहा था कि देखो, ऐसा मत करो कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। मैंने ये बात कही थी और उसे बार बार दोहराया भी था। क्या मैंने अपनी बात साफ नहीं कर दी थी? और क्या मेरी बात दुरुस्त नहीं थी? और मैं पीछे नहीं हटा। तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि घरेलू झगड़े में जो पीछे हट गया उसने सब कुछ हार दिया, ठीक है ना? और तुम भी पीछे नहीं हटी, ये याद रखना। मैं सिर्फ उस वक्त गुस्से से बेकाबू हुआ जब मुझे यकीन हो गया कि हम दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए मैं अपने ऊपर काबू खो बैठा। और मेरी बात दुरुस्त थी और मैंने जो कुछ किया उसकी माफी तक नहीं मांगना चाहता। उस रात झगड़ा तुमने शुरू किया था और यह तुम्हारी कोई अच्छी बात नहीं थी और सही बात भी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ अपना दिफा कर रहा था, अपनी इज्जत का और मर्द के तौर पर अपने वजूद का। वो मेरी तरफ देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटती जा रही थी। उसकी आंखों में एक बेजवाज दहशत झलक रही थी। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? क्या हुआ है तुम्हें? तुम कौन हो? कौन हो? तब वो अचानक बेतहाशा सड़क के बीच में बाजू लहराकर दौड़ने और एक टैक्सी को रोकने लगी। मैं उसे देखकर हैरत में डूब गया। टैक्सी महारत के साथ उल्टी तरफ आकर उसके पास रुक गई। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर गायब हो गई। इस पूरे अमल में उसे चंद लम्हों से ज्यादा वक्त न लगा। शक और यकीन के दरमियान की हालत में मैंने टैक्सी को अपनी नज़रों के सामने रफ्तार पकड़ते और फिर अंधेरे में ओझल होते देखा। मुझे अपने अंदर उसके पास जा पहुंचने की शदीद तड़प महसूस हुई। मैं खैरगी के आलम में अपनी जगह खड़ा रह गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी उससे महज चंद सेकंड बात की थी। मैं अपने और उसके ताल्लुक में आने वाली दरार को दूर करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे ऐसा करने ही न दिया। एक बार फिर मैं वापस पलट पड़ा और पुरयकीन कदमों से अंधेरे की तरफ चलने लगा। मैं जानता हूं कि जब मैंने उससे कहा था कि मुझे गुज़िश्ता रात की पूरी तफसीलात याद है तो मैं झूठ बोल रहा था। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं। सच तो यह है कि मैं कोई बात याद ही नहीं रखना चाहता था, न उसका चेहरा, न उसकी आवाज़ और न उसके कुचले हुए खून आलूद सर की तस्वीर जब वो फर्श पर बेहिसो हरकत पड़ी थी। मैंने उससे झूठ बोला था, बस इतनी सी बात है।